the question comes how good you are by not working for few years. Let's say treat it like you trying to start a new business कि आप कुछ नया business start करने जा रहे हो. For some years it will take a phase where you probably might not earn anything and you probably might even lose money, right? कुछ भी करना चाहोगे. Let's say you start, oh, I want to start a restaurant or cafeteria, इसमें इतना पैसा लगेगा, I will have to quit my job and all. Treat it like that only. So if you have a certain backup where you can justify the current living that you are and you want to change, like, yeah, I want to try something new, you can treat it like that, and then you can be like, you can always go back to your job. You have enough capital to do that. It also lies on how much responsibility you have in your place where you are. If it's too much, yes, there are people who are reliant on you. Probably take another couple of years to see through that responsibility is taken care of and then do it. If you do not have much, it's enough to actually go get a try on things, because every time you start a new business or start a new thing, you'll have to take certain amount of risks. Nikhil bhai, welcome. Sarang, welcome. And Hi, Praful. all the viewers, welcome. Hey, what's up? What's up, guys? So, first question. I think this is nice. Like, sir, systematic trading में DD कितना % होना चाहिए highest? ये तो निखिल, it's your arena. चलो निखिल, systematic trading को तू करता है, तू बता कि like तुम्हारा numbers क्या रहता है, usually क्या रहता है? So, मतलब I have been slightly vocal around it कि मैं DD नहीं देखता generally, because market हमेशा उस DD को break करता है. The new DD is always higher than the old DD if you keep trading. So, but in general, if somebody asks me, my DD, highest DD, like the highest DD would probably go somewhere around 9-10% के आसपास. That's where I'm comfortable around keeping it. And even if it goes like higher, even if it goes 15 odd %, I don't like, till I know what is going on, where I'm taking my trades, how it is coming, so I don't mind it. And what's your annual return expectation? Again, it comes around ki how much risk I'm willing to take. So I take very substantial amount of risks on my book. So accordingly that I like try to keep. But like as in general, like anywhere from 30 to any higher value, I'm fine. I'm happy with anything above 30 a year, considering the amount of risk I take. But if I get a good year, it can go very high. If I have a bad year, it can even go negative. I as a full-time trader, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते. The only thing I need to keep like all my attention usually is in कि यार एक time पे मेरे पास current risk कितना है. So if the market does X, how much I can lose. That's the only thing I mostly keep around looking. बाकी तो चलता रहता है. Drawdown is slightly a bad metric to look at. I like as a like trader who has been trading full time for a long time, I rather prefer looking at कि यार तुम्हारे बुक पे लेवरेज कितना है और तुम्हारे बुक पे वॉल्टिलिटी कितना है. जैसे इंडेक्स का विक्स निकलता है, आप अपने बुक का वॉल पे निकाल सकते हो. इफ यू गो एंड आस्क चैटजीपीटी कैसे निकालना है, वो बता देगा. तो दैट इज अ वे बेटर मेट्रिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपके बुक पे रिस्क कितना है. तो या दैट्स हाउ एट लीस्ट आई लुक एट मार्केट्स. See, but maximum जो traders है तो expiry trading करते हैं, short gamma trading करते हैं. तो like you are saying that मेरा जो drawdown आता है, that drawdown is somewhere around 10%, and मेरा जो annual risk है, annual return expectation है, that is somewhere around 30 to 40%. तो तुम्हारा जो Kalmar निकल के आता है somewhere around 4. But there are people like who are trying to achieve 10, 12, 13 Kalmar also. So do you think it's possible systematically? Yeah, it is possible. The drawdown, the numbers that I was talking about is majorly on the whole book. अगर आप एक्सपायरी की बात कर रहे हो, सिर्फ एक्सपायरी की बात कर रहे हो, तो कैलमार लाइक इनहेरेंटली कहने का मतलब है ड्रॉडाउन आपके कम होते हैं, और क्योंकि कंसिस्टेंट लॉसेस कम होते हैं. जनरली लॉसेस आर या तो एक ही बार में बड़ा होता है या फिर कंसिस्टेंटली कम होते हैं. इफ यू एटलीस्ट ट्रेडिंग इट फ्रॉम द सेल साइड, अगर आप बेच के ट्रेड कर रहे हो तो सो अगर आप सिर्फ एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो तो कैलमार और शार्प यूजुअली हाई होता है. बट द पॉइंट अगेन कम्स टू थिंक दैट कि वहां पे ना लेवरेज बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली. सो द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट यू कैन टेक ऑन एन एक्सपायरी गोज वेरी वेरी हाई. तो दैट्स द ओनली कॉम्पोनेंट. जैसे इफ आई एम ट्रेडिंग पोजिशनल तो मेरा ऑन एन एवरेज लेवरेज 2x 3x मैक्सिमम जाता है. बट इफ आई एम ट्रेडिंग 0DT, आई एम
मतलब margin पे I take like whatever possible, probably even like 10x that is possible right now full. यहाँ पे ना सी अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिसनॉमर अबाउट लेवरेज. तो लोगों को लगता है कि लेवरेज क्या होता है. पहले जो ब्रोकर्स देते थे, लेट्स से एक्सचेंज, इफ एक्सचेंज इज अलाउइंग यू टू बाय और सेल फ्यूचर और सेल एन ऑप्शन लेट्स से एट 1 लाख रुपी, एंड ब्रोकर्स आपको दे रहे हैं कि 20,000 पे एक लॉट सेल करने या बाय करने के लिए. सो पीपल थिंक दैट एज लेवरेज, एंड पोस्ट दिस लेवरेज फ्रॉम द ब्रोकर्स गोइंग अवे, पीपल थिंक दैट वो लेवरेज इज आपके पैसे पे प्रॉप फंड कितना पैसे देता है. सो पीपल डोंट हैव द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवरेज. बट So यहाँ पे मतलब yeah, लोगों को समझना पड़ेगा कि लेवरेज क्या होता है. yeah, कि I can like very simple in term में मैं explain कर सकता हूँ on this because I get this question a lot. Every time I talk about leverage, I get this question a lot. Generally, what leverage is कि आपने कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया. अगर आप एक निफ्टी का लॉट लेते हो जो अभी अराउंड 20 लाख के आसपास का है, तो 20 लाख का लॉट लिया, उसके लिए आपको मार्जिन कितना लगा, लाइक जो मार्जिन आपने डिप्लॉय किया, लाइक से आपको 2 लाख का मार्जिन लगा, तो इनहेरेंटली आपका लेवरेज हो गया 20 डिवाइडेड बाय 2, तो विच इज लाइक 10. तो इनहेरेंटली आपने 10x लेवरेज ले लिया अपने अकाउंट पे. तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट लेवरेज. You can do it on deployed margin or you can do it on account value. It's up to you depending on अगर आप एक ही चीज ट्रेड कर रहे हो, सारे ट्रेड कर रहे हो, तो that's how it is. Inherently it's like exposure, that is कि वो लॉट कितना बड़ा है डिवाइडेड बाय उस लॉट के लिए मार्जिन कितना लगा आपको. That is what leverage is. If you use spreads, अगर आप spread यूज करते हो तो जनरली you can take larger leverage. अगर आप नेकेड ट्रेड करते हो तो यू कैन टेक लोअर लेवरेज. बाइज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. बाइज में इंडियन मार्केट्स और एनीवेयर इन द वर्ल्ड द मार्जिन अलाउड, द मार्जिन इज बेसिकली जितना आपको प्रीमियम आपने पे किया, राइट, जितना आपने प्रीमियम उसको उठाने के लिए उस पोजीशन को उठाने के लिए पे किया. बाइज में आपका लेवरेज बहुत थ्रू द रूफ चला जाता है. लेट्स से आपके पास 1 लाख का अकाउंट है और आपने 100 रुपए का निफ्टी का ऑप्शन बाय किया है, तो 100 रुपए का निफ्टी का ऑप्शन 1 लाख पे बाय करोगे तो समवेयर अराउंड 7500 रुपए, 7500 रुपीज का आपको बाइंग लगेगा. सो आप समवेयर अराउंड 12 से 13 लॉट बाय कर पाओगे. नाउ 13 लॉट का एक्सपोजर एक्चुअली 20 निफ्टी का एक लॉट 20 लाख का है, तो 13 लाख का एक्सपोजर 2 करोड़ 60 लाख के आसपास चले जाता है. 1 लाख पे आपने 2 करोड़ 60 लाख का एक्सपोजर लिया हुआ है इनहेरेंटली. दैट इज समवेयर अराउंड 260x लेवरेज. दिस इज द प्रॉब्लम व्हेन पीपल टॉक अबाउट कि बाइंग थोड़ा सा रिस्की है. लोग ब्लो अप करते हैं, बायर्स ब्लो अप करते हैं जनरली क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेवरेज लेते हैं. सो दे कैन मेक और लूज whatever they have deployed. अगर 1 लाख डिप्लॉय किया है तो they can make or lose पूरा 1 लाख रुपए in a very small move because the leverage is 260. I think a lot of these shady crypto exchanges and these lot of these forex exchanges, they make money by being a counterparty to these retail flows because retail flows के पास इतना ज्यादा leverage दे देते हैं, 100x 200x leverage दे देते हैं, तो even a very small move can lead to liquidations. तो in my opinion कि leverage जितना कम रखते हैं उतना बढ़िया है. And somebody is asking here कि what is the yearly return expectations? Sarang bhai, like what is your annual expectations? आपका क्या रहता है? यार इन्होंने जैसे पूछा 15 to 20%. सो यार होता ये है कि देयर आर डिफरेंट रेजीम्स. जैसे 2021 22 23 तब 30-40% भी कम था और एनुअल रिटर्न्स. अभी क्या है, अभी मार्केट थोड़ी इतनी स्मूथ नहीं चल रही है, प्रीमियम्स भी कम है, तो 15 से 20% इज ऑल्सो गुड. तो लाइक ऑन एन एवरेज आई वुड से क्लोज टू 25% ऑन एन एवरेज. अगर आप 10 साल का देखें तो इट्स मंथली टू गुड इनफ. या मतलब जैसे राकेश झुनझुनवाला का था नहीं वो पोस्ट, वो कोट के आई मेक 18% आई एम अ किंग. तो तुम्हें उस हिसाब से देखना चाहिए. देयर आर रेजीम्स व्हेन 15% भी बहुत अच्छी होती है, देयर आर रेजीम्स व्हेन 30% भी कम मिले पड़ेगी. तो उस हिसाब से तुम्हें ये अंडरस्टैंड करना है कि किस रेजीम में यू हैव टू प्रेस द थ्रॉटल और किस रेजीम में जो है 15% भी ठीक है. सो अगर वो पता चल जाए देन काफ़ी क्लैरिटी आती है मार्केट में और ट्रेडिंग में आपके. So I think around this itself, like there is another question: what should be the capital requirement for a full-time trader? So I mean, this is like a very common question. बहुत लोगों का मतलब सवाल होता है कि like हम जॉब कर रहे हैं, जॉब को क्विट करके मैं फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूँ एंड वगैरह वगैरह, तो कितना कैपिटल से ट्रेड करना है. तो हेजिंग कॉस्ट भी ऊपर गया है, प्रीमियम रिजीम कम हो चुका है, मार्केट का मूव ज्यादा बढ़ चुका है. सो
as Sarang bhai said कि we should go with an expectation of around 2% per month. मतलब अगर रिस्क को आपको कंट्रोल करके चलना है, अगर आपको 2-3 महीने का ड्रॉडाउन नहीं झेलना है एंड यू नो बड़े लॉसेस 5% के ऊपर अगर आप ड्रॉडाउन को नहीं झेल सकते हैं, तो बेसिकली यू हैव टू गो विद समवेयर अराउंड 2% पर मंथ रिटर्न एक्सपेक्टेशन. तो समझ लो कि साल का 25% आपका पैसे बनने वाला है, तो आप सोचो कि 25% पे आपका सालाना खर्चा भी निकलना चाहिए एंड एट द सेम टाइम आपको टैक्स भी भरना होगा एंड एट द सेम टाइम आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी थोड़ा बहुत कंपाउंड होना चाहिए, है ना. मतलब let's say you're trading with let's say 10 lakh cap of 20 lakhs capital 2 years back, but आज भी आप 20 लाख से ही आप ट्रेड कर रहे हो, तो then it doesn't make sense. तो आप कम से कम मतलब 2 साल में वो जो 20 lakhs है after all your expenses and all that, it should grow. So in a way let's say आपका साल का खर्चा let's say 10 लाख रुपए है, तो पहले वो 10 लाख निकलना चाहिए एंड let's say 5 लाख रुपए टैक्स के लिए निकाल दो. So ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा. So in my opinion I would say at least 50 lakhs मिनिमम 50 lakhs तो होना चाहिए इफ यू वांट टू ट्रेड इन अ प्रोफेशनल वे, जहां पे मतलब आपका ड्रॉडाउन सिंगल डिजिट में हो एंड आपका एक इनकम लाइक एक स्टेडी एक प्रेडिक्टेबल इनकम बनना चाहिए एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू मैनेज योर टेल रिस्क एज वेल. मतलब लोगों में ये भी है कि भाई दूर का ऑप्शन बेचते हैं तो बहुत सेफ होता है, तो देयर आर पीपल and you know when we go into these trading conferences and all that, there we get like a lot of people who say that we are managing the family corpus of 30-40 crores and हम लोग आके you know weekly options में 5 रुपए का कॉल एंड 5 रुपए का पुट सेल कर देते हैं विथ फुल मार्जिन एंड साल के एंड में हमको 12% मिल जाता है. निफ्टी वैसे तो 10% दे ही देता है. तो people go into these kinds of calculations, but fortunately in the last 4 or 5 years we have not seen some sort of a black swan event. एंड जब भी एक ब्लैक स्वन इवेंट होता है तो दोज पीपल विल गिव अप लाइक 2 years ऑफ देयर गेन्स. तो मेरे हिसाब से लाइक आपका ब्लैक स्वन रिस्क जो होता है इट शुड नॉट बी मोर देन 3 months ऑफ योर गेन्स. फॉर एग्जांपल अगर आपका मंथ की एवरेज गेन है समवेयर अराउंड 2%, देन योर वॉर वैल्यू एट रिस्क शुड नॉट बी मोर देन 8%, 6 to 8%, सो दैट अगर ए ब्लैक स्वन एक रिस्क, तो ब्लैक स्वन इवेंट्स तो मतलब हर बार तो नहीं आता, करेक्ट, लाइक once in 3 years, once in 4 years ऐसे कुछ आता है. तो ऐसे सिनेरियो में इवन इफ यू लुक द एंटायर कॉर्पस, मतलब आप उस टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं, कुछ भी नहीं किए, तो बेसिकली आपका जो वॉर है वॉर हिट हो गया. तो इन माय ओपिनियन वो वॉर शुड नॉट बी मोर देन योर 4 months एवरेज अर्निंग्स. एंड प्रोबेबली लाइक निखिल माइट बी हैविंग अ डिफरेंट टेक ऑन दिस एंड सारंग माइट बी हैविंग अ डिफरेंट टेक ऑन. नहीं ऐसा ना कि इसमें यू हैव टोल्ड अबाउट ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बायर्स भी है ना, ऑप्शन बायर्स के लिए क्या होगी? ऑप्शन बायर के लिए तो मेरे हिसाब से आई थिंक दे हैव टू कंसीडर द एंटायर प्रीमियम एज देयर वैल्यू एट रिस्क, एज सिंपल एज दैट. नहीं उसमें कितना रिस्क लेना है अपनी कैपिटल में, दैट्स द क्वेश्चन ना. अगर कोई 10 लाख से करता है तो 10 लाख थोड़ा करेगा काम. 10 लाख से अगर Probably कोई देंगे कर रहा है इसको. तो प्रोबेबली 50,000 से ज्यादा प्रीमियम बाई नहीं करनी चाहिए. 5%. प्रॉब्लम ये है ना कि अब में से कोई ऑप्शन बायर है नहीं, सारे ऑप्शन पहले. The like very simple premise in here is कि आपका opportunity cost कितना है. अगर आप जो काम अभी कर रहे हो वो छोड़ के ट्रेडिंग में आना चाहते हो, राइट, तो उसमें आपका opportunity cost बहुत हाई नहीं होना चाहिए. अगर आपका लाइक यू आर एट अ वेरी गुड हाई लेवल कंपनी और आप उसको छोड़ के ट्रेडिंग में फुल टाइम आना चाहते हो, देन यू नीड अ रियली लार्ज कैपिटल टू एक्चुअली मेक सेंस. अदरवाइज इट बिकम्स रियली हार्ड. 50 लाख में नहीं होगा इफ यू लीविंग अ जॉब which pays really high, right? तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंपोनेंट बहुत बड़ा होता है. ट्रेडिंग इन जनरल इज अ वेरी रिच मैन. It's not like meant to be a small player game. It's a very hard to play at a smaller player level than a higher level player. I generally suggest people, if you do not have a very high net worth, या अगर आपका पैसा इतना नहीं है कि आपका GSEC में डाल दो तो आपका खर्चा तो निकाल देता है वो, like just from the GSEC money आपका खर्चा निकल जाता है. I usually suggest people to try probably find a gig job or some firm at a prop fund. Like prop fund mein you try to find a dealer job or somewhere where you get enough exposure and enough margin, and if you do well to aapka size bhi thoda like you can grow on sizes, right, working for them. So it's rather, if you are like wanting to be in the markets for a gig, it's better if you don't have a lot of money to work for someone than to do it yourself. If you have a lot of money, then it becomes a different game. Then it's like starting a new business. You can start smaller because you don't really have to pay your expenses, and then once you get it, you size up to the capital that you have. So it's mostly that. Buying के लिए, so buying के लिए क्या होता है? Buying is like
इट्स अ कैश फ्लो का बिजनेस, राइट? तो मैं जनरली, मेरे पास है लेट्स से 1 करोड़ रुपया, राइट? I am not gonna put 1 crore rupees at lottery every time. So उसका क्या होता है, I just put like a part of it every time, and that 1 crore is just sitting doing passive money or something else, right? So what I am inherently doing is like, oh, let's say I'm gonna bet 1% every day of that 1 crore rupees. That gives me 100 bets, right? So I am inherently taking 1% का रिस्क एवरी डे एंड देन जस्ट बेटिंग 1%, नॉट लाइक कि मेरे पास पूरा एक है तो मैं पूरा एक पे डाल रहा हूँ. दैट एक इज सिटिंग इन अ पैसिव इन्वेस्टेड कैपिटल. उसमें से आई एम जस्ट टेकिंग 1 लाख का रिस्क एवरी डे, ट्राइंग टू चर्न आउट कैश फ्लो. बेसिकली जो मेरा दिन का मैं बना सकता हूँ वो आई एम ट्राइंग टू मेक. देयर विल बी डेज वेर यू विल मेक लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वेर यू आर बाइंग. तो अगर आप लेट्स से 1 लाख पे यू विल मेक लाइक 5%, six like 5 times, 6 times of the money. There will be days where you'll lose all of it. So that should be fine with you. That's how you treat at least buying side, say, since we had a confusion about it. सारंग भाई को एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है. somebody asking Sarang, when you trade Nifty options, do you do all your technical analysis on the futures chart or on the spot chart? Yeah, I only follow this synthetic futures and personally मेरे को technical analysis नहीं करता. तो मेरे सारे whatever analysis होते हैं वो options में ही होते हैं. So basically I'm like a vol trader. तो सब कुछ उसी के basis पे होता है. Nothing related to futures or spot or even synthetic. तो यही transition है. ऑप्शंस में सारंग भाई लाइक यू गेट सो मच ऑफ कस्टमाइजेबिलिटी एंड मैन्यूवरेबिलिटी. आप किसी भी तरह का पे ऑफ आप जनरेट कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल पहले मैं प्योरली डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर था कि लाइक मुझे सिर्फ टीटा ही खाना था, सिर्फ वॉल क्रश ही खाना था. अब मैं थोड़ा डेल्टा का बयास रख रहा हूं बट यूजिंग नॉन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर. मतलब एक स्क्यूड स्ट्रैडल रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट 26,000 लेवल्स. आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, देन आई टेक अ 26,200 स्ट्रैडल और समथिंग. एंड एट द सेम टाइम अगर मेरे पोजीशन अगेंस्ट जाता है तो इस स्ट्रैडल को हम रेशियोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. यार ये वही प्रॉब्लम है ना यार. ये द थिंग इज दैट ऑप्शंस ना दलदल है. जब तुम फ्यूचर्स को छोड़ के जब ऑप्शन में घुसोगे ना तो तुम्हारा दिमाग इतना चलना शुरू हो जाता है ना कि मैं कैसे अपनी पोजीशन को हेज करूँ, कैसे मैं डिके भी खा लूँ और सब कुछ. तो या आई मीन फॉर अ नोविस आई थिंक ही कैन जस्ट स्टार्ट विद सिंपल सिंथेटिक फ्यूचर्स और मे बी डेबिट स्प्रेड्स. दैट्स अ गुड वे. बट अगर तुम ऑप्शंस में घुसोगे तो हाँ, ऑप्शंस की फिर वो नॉलेज चाहिए एंड उसके साथ चीज़ें फिर थोड़ी वो कॉम्प्लिकेट होनी शुरू आती है. वो तो है बिकॉज लाइक लॉट ऑफ पीपल, आई नो लॉट ऑफ पीपल हु हैव लाइक डिसेंट एंट्री पॉइंट्स बट एंट्री के बाद अपना पोजीशंस को मैनेज करने में, सैल्वेज करने में उसमें ज्यादा पैसे दे देता है. एंड यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि फर्स्ट लाइक आई विल टेक दिस ओके बिकॉज दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टेड टू मी. प्रफुल्ल भाई ये सवाल आपके लिए है. क्या ऑप्शन सेलिंग में चार्ट देखना जरूरी है अगर मुझे 0DT या 2TT ट्रेड करना पड़ेगा? आई मीन देखो भाई, आई नो पीपल हु डोंट इवन लुक एट चार्ट्स, सिर्फ प्राइस पिक्स पे ही मतलब ट्रेड करते हैं. एंड देन देयर आर पीपल लाइक हु ट्रेड ओनली बेस्ड ऑन चार्ट. सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, ट्रेंड को पकड़ के ट्रेड करते हैं, लाइक डाउ थ्योरी यूज करके हायर हाई हायर लोज लोअर है उस पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं. सम पीपल ओनली ट्रेड चार्ट पैटर्न्स एंड सम पीपल ओनली ट्रेड कैंडल स्टिक पैटर्न्स. मुझे रेजिस्टेंस लेवल पे एक एंगल्फिंग कैंडल मिला तो उसके नीचे में सेल करूंगा और उसका हाई का स्टॉप लॉस लगाऊंगा. सो आई यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स बिकॉज मैं ग्रीक्स को भी यूज करता हूं, मैं प्राइस एक्शन को भी यूज करता हूं एंड एट द सेम टाइम मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी यूज करता हूं. बिकॉज what I believe is you don't have to reinvent the entire wheel. Okay, wheel को reinvent करने की जरूरत नहीं है. You take the good aspects of all different things because I know that some people only trade Greeks. वो सिर्फ Greeks को ही trade करता है and some people only trade price action. So if you can pick a bit of price action and pick a bit of Greeks and combine, तो that would give the best results in my opinion. कोई एक चीज को मतलब follow मत करो कि like you don't have to be a purist and at the same time you don't have to be like that a bull who doesn't know anything and who's just like charging ahead. So you have to be in a moderate place where you understand the complexities and at the same time you have to make it simple enough for you to execute it day in and day out. अगर आपको कोई चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकता है, 10 इंडिकेटर थोप दिए चार्ट्स पे एंड 4 कंफर्मेशंस के लिए वेट कर रहे हैं, तो देन बेसिकली यू विल बी मिसिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिकॉज कोई परफेक्ट एंट्री या कोई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी तो नहीं होती. तो बिकॉज यू आर placing a bet, understanding and accepting that uncertainty.
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम जो कॉम्प्लेक्स चीजें भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट सो दैट एग्जीक्यूशन बिकम्स ईजी, especially like the kind of trades that we do, especially like expiry day पे या closer to expiry हम जो ट्रेड कर रहे हैं ना, यहाँ पे एनालिसिस से ज्यादा एग्जीक्यूशन पे बात आ जाती है. सो आई फील दैट इट इज एग्जीक्यूशन इंटेंसिव. आप चाहे कितना भी एनालिसिस करो, अगर 5 मिनट में अगर ऑप्शन 4 गुना 5 गुना हो जाता है, लाइक जो गामा मूव्स आते हैं, वहां पे आप वेट नहीं कर सकते कि लाइक भाई मैं वेट करूंगा ये सपोर्ट ब्रीच होने के लिए, रेजिस्टेंस ब्रीच होने के लिए, बिकॉज एट दैट पॉइंट यू बिकम टिक सेंसिटिव. हर टिक पे आपको कुछ ट्रेड्स लेना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट. अगर आपका एमटीएम रिस्क के बाहर जा रहा है तो यू हैव टू कट, डजंट मैटर लाइक व्हाट योर टेक्निकल एनालिसिस सेज, बिकॉज मेरे हिसाब से लाइक फाइलर लेयर आता है, वो रिस्क मैनेजमेंट आता है, उसके बाद जो बाकी लेयर्स है वो आता है. सो दैट इज दैट्स माय टेक ऑन इट. निखिल, तू कमोडिटीज करता है? Yeah, I'm doing a lot of commodities. So take this question as a product, how do you see commodities? Isn't they give you like a better risk reward as compared to So, index? for like if you're trading commodities, actually most of why I trade commodities is for diversification play, because I'm not allowed to trade different markets, right? So मेरा सारा रिस्क इंडियन मार्केट पे आ जाता है. इफ इंडियन मार्केट स्पेसिफिक न्यूज कम्स, आई एवरीथिंग विल गो, सब कोरिलेट हो जाता है, मतलब एवरीथिंग स्टार्ट्स लूजिंग और मेकिंग मनी टुगेदर, राइट? सो दैट्स अ मोस्टली अ डाइवर्सिफिकेशन प्ले. कमोडिटीज में it's very like worldwide renowned ki commodities are very good trend following product. If you do trend following in any place, doing it in commodities makes the best sense, because you get a lot of things. क्या आपको बहुत सारी चीजों पे ट्रेड करने को मिलता है जो uncorrelated है. So could be like कि nat gas is slightly uncorrelated to what copper is trading, what copper is trading is slightly unrelated to what mentha oil is trading, or what mentha oil is trading is slightly uncorrelated to what electricity futures is trading, right? So मतलब inherently हो जाता है. But अगर मैं स्टॉक, यही काम मैं स्टॉक्स में कर रहा हूँ, let's say I'm doing SBI, Reliance और CDSL का futures, let's say all of them tells me to go long, for whatever reasons they could be. If a macro specific news, India specific news comes, I know all of them gonna lose money. So it's more of a diversification play, and it really helps कि आपका पूरा ट्रेडिंग का PNL थोड़ा सा स्मूदन हो जाता है. So yeah, I mean I like. How was your this silver expiry जो हुई थी अभी? No, I am not trading Replacement expiries. अच्छा, I am trading monthlies. So it's like I'm trading both. So short gamma, selling options there, and trend as well. So not trading expiries and such, because not a hardcore believer of trading expiries on. I don't know. Like I don't know much to be trading expiries on this, but I am trading monthly, next monthly options on. चलो एक्सपायरी की वॉल्टिलिटी अगले उस पे भी तो आती होगी ना, अगली एक्सपायरीज पे जितना डेल्टा आया था मूव सिल्वर thing पे. is, it's not a bi-weekly, it's a monthly expiry. Monthly, so, yeah. let's say this silver I think was up 1.5% this expiry. Doesn't really affect the next month expiry much. Matlab, you might lose some money, but it will not be much. Like I didn't even like I don't think I lost any money, just moved a bit here there. बट मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि काफी लोग जो है जो पहले सिर्फ इंडेक्स स्पेसिफिक काम करते थे, वो सारे अब जो है कमोडिटीज के बारे में बात करने लग गए हैं. एंड एवरीवन इज डूइंग दीज एक्सपायरीज, सिल्वर की एक्सपायरी और बाकी मतलब सो वही है, डाइवर्सिफाई लोग कर रहे हैं. बट इज देयर अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड ओवर देयर? Like no, I can tell you why I don't trade expiries on commodities. कमोडिटीज का बेनिफिट सिर्फ तभी आता है जब आप बहुत सारे चीजें इकट्ठे कर रहे हो. लाइक आप सिल्वर भी कर रहे हो, आप मेंथा ऑयल भी कर रहे हो, आप कॉपर भी कर रहे हो, आप क्रूड भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. एक्सपायरी कर रहे हो तो आप बेसिकली वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी का एक्सपायरी होगा. इफ यू साइज इट बिग, commodities have a tendency to go way higher, way volatile than indexes usually do. तो वहां पे रिस्क ऑफ र्यून बहुत ज्यादा है, वहां पे लार्ज लॉसेस के रिस्क बहुत ज्यादा है. सो आई डू नॉट ट्राई टू मिंगल ऑन द लार्जर लेवरेज. तो मैं आई वुड नॉट वांट टू ट्रेड लाइक, अगर मैं लेट्स से निफ्टी में 10 या 100 लॉट कर रहा हूँ, आई वुड नॉट वांट टू ट्रेड सिल्वर विद 10 और 100 लॉट. आई वुड प्रॉब्ली ट्रेड विद 1 लॉट, प्रॉब्ली 10 लॉट्स, डिपेंडिंग ऑन हाउ साइज है.
So I'm specifically not even touching commodities, zero DT. छोटे साइज पे रात को 11 बजे तक बैठने का कोई मतलब नहीं है, और बड़े साइज पे कर नहीं सकते because the risk becomes too large. भाई यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारंग भाई, आई थिंक इट वी शुड ऑल पिच इन फॉर दिस. एज अ परसेंटेज ऑफ योर नेटवर्थ, कहाँ पर था भाई ये क्वेश्चन? Yes, how much capital as a percentage of net worth you guys place for trading margin? Saran bhai, you go first. Less than 10% is what I say. No, I'm sorry. I would not, like, the thing is, it's not a component of me or you. It's mostly a component of how you can think. As a person, let's say if I was completely independent and all, right, I would be fine even putting 80%, like the way I am trading right now. I would be fine even putting 80% of my net worth into the trading, which I will say is different. No, I'm just saying I would be comfortable. I don't, and also the responsibilities that I have, I am like a free bird right now, so I can take as much risk as possible in life. Like I do not take risk. I do not have a story to tell when I'm motivated. Don't beat around the bush. Give a number. Yeah, There's no number. बहुत बकबक करता है. There's no numbers. These are questions which actually do not. If I tell you my number, it will not affect your thing. So yeah, I will abstain from it. ऐसे तो कुछ भी बोलेगा तो किसी को इफेक्ट नहीं होगा, बट somebody can take a cue from how they can structure their trading journey. Because I'm gonna go out and say, like, I'm somewhere around 60% or 50 to 60% of my net worth is in trading. And no, 40 to 50% of my net worth is in trading. And मेरा जो वॉर रहता है वो somewhere around 12% के आसपास वॉर रहता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कल कुछ ब्लैक स्वॉन इवेंट भी होता है तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का 12% उड़ेगा, उससे ज्यादा उड़ेगा नहीं. दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो. ऑफ कोर्स सैल्वेज भी कर सकता है, थोड़ा मैनेजमेंट भी कर सकता है, बट वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो आई लूज प्रॉब्ली 10 to 12%. वर्स्ट केस, ठीक है. एंड दैट वुड बी समवेयर अराउंड 6% ऑफ माई नेटवर्थ. एंड आई एम हैप्पीली विलिंग टू लूज दैट 6% ऑफ माई नेटवर्थ टू मेक प्रोबेबली 35-40% ईयर ऑन ईयर. जैसे you did in 2024 में जब वो मिड कैप पे लगे थे. हाँ, मिड कैप पे लगा हुआ ना. मिड कैप पे मेरा एक दिन में 6% उड़ा था, एंड उसके बाद भी सकता तो बाय रिव्यू आई लॉस्ट 5% इन अ पर्टिकुलर डे. एंड दैट टाइम मेरा रिस्क भी काफी ज्यादा था. लाइक इफ यू नोटिस, लाइक आई रिटर्न्ड ऑलमोस्ट ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स लास्ट ईयर. क्यों? बिकॉज लाइक माय पर डे रिस्क वाज समवेयर अराउंड 2 to 2.5%. मैं तो वही कह रहा कि तुम वही कह रहा है वो रिजीम में वो रिजीम पे डिपेंड करता है ना, इसलिए. क्या फायदा? Yeah, exactly. I used to do that. तो 1-2% के नीचे मैं बात ही नहीं करता, बिकॉज इट वाज द रिजीम. क्योंकि कैसा था कि एवरी डे देयर वाज एक्सपायरी, एंड अगर मेरा आज 2-2.5% लग भी जाता ना तो 1 या 2 दिन के अंदर वो रिकवर भी हो जाता था. तो टाइम ड्रॉडाउन यूज्ड टू बी लाइक मैंने कल प्रफुल को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया था. फिर उसके 10 मिनट बाद रिप्लाई आया कि यार आज लंका लगी हुई है, 0.2% डाउन हूँ. तो आई गेव मैंने कहा स्क्रीनशॉट डालना चाहिए ये एक्स पे कि 0.2% पे इसकी लंका लगी हुई है. As a working full-time professional, which trades and strategies will work well with very less screen time? Yeah. ये तो निखिल ही करता है यहाँ पे. निखिल बताओ. निखिल तुम बताओ यार, तुम तो पूरा एल्गो चला रहे हो. निखिल एक तो पहले पीछे अपना पहाड़ों में इस फ्लॉन्टिंग ये दिखा रहा है कि भाई देखो मैं ऐसे ये लाइफस्टाइल है मेरी. Yeah, I mean, you can flaunt a Lamborghini or you can flaunt a zero AQI. I'm flaunting zero AQI. Anyway, so the thing with the markets is if you are trading slower time frame, let's say weekly, monthly, or even higher quarterly, you could probably go off with not looking at markets and just keeping alerts and everything else. If you go in trading intraday or expiries, so you have to be sitting on screen looking at the thing. There's a famous saying that I would probably leave my oven or microwave unchecked with food in it rather than leave my zero DT expiry ka screen. Me and Praful used to joke around that we not used to go to the washroom. Yeah, exactly. मैंने बहुत नहीं पढ़ा है. We were scared as soon as we... Nikhil, I'll tell you this, since the last 3 or 4 months, right? मेरा ट्रेडिंग बहुत पीसफुल बन चुका है. लाइक अभी पहले तो मैं इवन एज वी यूज्ड टू जोक, लाइक वी यूज्ड टू नॉट इवन गो फॉर द वॉशरूम,
बट अभी तो मैं पोजीशंस ओपन रहता है एंड आई गो एंड प्रिपेयर माय ब्रेकफास्ट 15-15 मिनट भी चला जाता हूँ बिकॉज वो पोजीशन साइज एंड लेवरेज एंड एक्सपोजर इतना कम हो चुका है ना, मुझे पता है कि भाई अगर मार्केट इतना भी गिरेगा ना, मेरा इतना कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है. तो प्रफुल So- वही मैं तेरे को कहता था ना कि जब लास्ट ईयर व्हेन आई यूज्ड टू लाफ एट यू, जब वो तो उतना रिस्क लेता था, तो आई यूज्ड टू लाफ हाँ. यार ये एक हर ट्रेडर की ना ये जर्नी है, एट द एंड यहाँ पे पहुंच ही जाता है, Yes, यहाँ पे yes, yes. पीस चाहिए वरना इट्स नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन. So वो in भी है short, बिकॉज वो पूरा रगड़ रगड़ के 50% बनाना वर्सेस पीसफुली 30% बनाना, आई वुड चूज 30% ओवर दैट रगड़ के 50% एनी डे. पर वो 50% एक बार ही कमाना जरूरी है उसको समझने के लिए कि व्हाट्स बेटर. जब तक दोनों चीजें देख ना लो तब तक इट्स I mean, समझ that is that also depends on like where you are at your point, in which point of life you are in, correct? Like वहाँ पे if you have nothing else to look at and if you are like locked in, तो probably you should go all in and you should क्या बोलता है कि like aggressive जाना पड़ेगा, because I've had that phase and I enjoyed it too. वहाँ पे मतलब ये नहीं बोलूंगा कि yes it was a little burnout kind of लग रहा था, but I enjoyed that phase thoroughly. in short, the एक answer बार would be कहना कि सरवाइव कर लो तो फिर Yeah. लाइक यू एंजॉय ओनली. अब जो सरवाइव नहीं कर पाता उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है ना. हाँ ऑफ कोर्स वो भी है, थोड़ा ये सब हाइंडसाइट है, मतलब अगर Yeah. बैक टू बैक वहां पे, बट मैंने ये देखा है ठीक है कि लाइक यू शुड गो एग्रेसिव व्हेन थिंग्स आर गोइंग इन योर फेवर. मतलब हो सकता है कि लाइक एज अ ट्रेडर आई एम अ मीन रिवर्शन काइंड ऑफ अ ट्रेडर, बट इन लाइफ आई ऑलवेज चेस मोमेंटम. इफ थिंग्स आर गोइंग वेल आई डबल डाउन. लेट्स से लाइक अगर एक महीना Oh. बहुत अच्छा चल रहा है, देन Yeah. आई incrementally stack my risk. You said that only ना कि जब expiry trading में if you on expiries if you make good decent profit 12 बजे तक, then you go more aggressive. Exactly, Because yeah. एक- I'm एक willing वो to एक let दो go of cushion that मिल profits. जाता है. अगर प्रॉफिट कुशन पे बैठा हूँ तो 12 बजे के बाद थोड़ा अग्रेसिव और जाता हूँ, अगर वो जाता है तो जाने दो. Yeah, that's how it should be actually. So Ankit asks, for naked option sellers, how much notional exposure should one take? Please give some insights about position sizing. If you are going ये तो for naked- positional trades, then probably 2x notional maximum. अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप 4x भी कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. naked options में ना the thing with it is कि you will also have to like कि आप किस tenure पे ट्रेड कर रहे हो. अगर आप एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हो तो अगर आप 2x पे ट्रेड करोगे तो कुछ ज़्यादा बनेगा नहीं. You will not make much money and it will be not worth your time. But if you would be trading probably on a monthly or a quarterly, it would be enough for you to make a substantial amount of money, and then not even be actively present probably, right? So it's a lot. A lot of people trade naked options on a short term contracts. So if you are trading naked options, right, you're better off trading longer term contracts, quarterly options या even yearly options में भी काफी अच्छा रिटर्न आता है यार. The problem there is mostly कि जब आप शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स या एक्सपायरी या ये वीक करते हो तो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता है कि यार आपको लगता है कि यार आप मार्केट मूव करेगा, मैं आई कैन प्रॉब्ली कम इन हाफ एन आवर एंड देन कंट्रोल इट, माइट हैव मूव्ड वे बियॉन्ड योर पोजीशन. So that becomes a slight bit of problem. Whereas on a larger quarterly or a monthly contract, it has to move way a lot. So uska component hai. I'm just saying कि for both like for naked contracts you have to look कि आप पास का ट्रेड कर रहे हो या दूर का ट्रेड कर रहे हो. दूर का ट्रेड कर रहे हो तो you don't have to take much leverage to make money. पास का ट्रेड कर रहे होगे तो you will probably have to take slight bit of substantial risk to make that money. If you are fine with taking that risk, good for you. I'm not saying that risk is good or bad because I take it as well. So अगर आप if you're fine with it, then it's not a problem. अभी कोई पूछ रहा है अभी क्या चल रहा है मार्केट में, बड़ा ही लाइक मार्केट काफी आज ठस सी हो रखी काम है. काम बहुत है, काम अच्छा है. है, हाँ भाई, good काम. नहीं अच्छा नहीं यार, नहीं यार. फ्राइडे इज अ वेरी डिसाइसिव डे फॉर अ पर्सन लाइक मी जो पोजिशनल ट्रेडिंग करता है ना. तो फ्राइडे को काफी चीजें थोड़ी क्लियर होती है और फ्राइडे टू मंडे एक्चुअली काफी काम होता है. और तुम्हें लाइक फॉर पोजिशनल गाइस थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए बिकॉज ज़्यादा मैक्सिमम गैप्स जो हैं वो फ्राइडे टू मंडे आते हैं. सो इट्स अ वेरी डिसाइसिव डे. अभी जब से निफ्टी की एक्सपायरी चेंज हुई है तब से थोड़ा सा हो गया है चेंज, थोड़ी रिजीम चेंज हुई है. जब निफ्टी थर्सडे को थी तब इट यूज्ड टू बी प्रीटी वोलेटाइल.
अब थोड़ा ठंडा हो गया है अगर इफ यू और सी आज एक मंथ। सब्सटैंशियल ड्रॉप भी है आज वॉल्स पे, तो अच्छा है। या हाँ, एग्जैक्टली। 210 से लेके 180 पे आ गया स्ट्रैडल तो। स्टिल गुड 2 hours to go. या एग्जैक्टली, तो वही कह रहा हूँ ना कि वो वीकेंड की जो गेम है अभी वो बाकी है, और देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल कोई अच्छे स्क्यूज भी नहीं बन रहे हैं किसी भी तरफ। Somebody is saying I'm trading only one weekly Nifty option selling positional strategy since last 2 years and doing okayish as of now, improving all the time. Do you suggest me to just stick with one setup and framework? सारंग भाई आप बताओ। या वो अगेन वो तुम्हारी फिलॉसफी पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी मार्केट की क्या फिलॉसफी है। जैसे मैं खुद सिर्फ निफ्टी करता हूँ आजकल, सेंसेक्स नहीं करता। परहैप्स अगर बैंक निफ्टी आ जाएगी, बैंक निफ्टी और निफ्टी तो मैं दोनों कर सकता हूँ। बट अभी यार मेरी लास्ट 7-8 मंथ्स में निफ्टी अकेले में काफ़ी खुश हूँ। और बट या अभी तो डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना, जैसे लाइक फॉर 5 days, लाइक वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इवन मंडे मेरी काफ़ी रिलैक्स्ड रहती है रूटीन। एक्सपायरीज पे थोड़ा सा शुरू हो जाता है काम। तो ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना, तुम्हें मार्केट से एक्सपेक्टेशन है, और तुम कितना अपनी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करना चाहते हो। कोई पूछ रहा है कि सर इफ यू आर मेकिंग 40% इन अ ईयर देन डीडी कितना फेस करना पड़ता है भाई। लाइक आई थिंक वी हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन लाइक थ्राइस आई गेस। तो भाई 5 का कैलमार पकड़ लो, तो अगर 40% का रिटर्न है तो अप्रोक्सीमेटली लाइक 7 से 8% डीडी या 10% के आसपास डीडी पकड़ के चलो, ठीक है। तो देखता है। एंड डू यू बाई स्टॉक और ETF व्हेन मार्केट इज डाउन एंड देन प्लेज? यस। तो बेसिकली इंडेक्स स्टॉक को मैं बाई करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरा जो कैपिटल रहता है वो कैसे रहता है कि लाइक डेट, इक्विटी एंड कमोडिटी, लाइक यूजुअली गोल्ड। डेट, इक्विटी एंड गोल्ड में रहता है मेरा। एंड ऑफ कोर्स लाइक ट्रेडिंग से कंटिन्यूसली पैसा जनरेट होता रहता है, तो कैश में भी काफी ज्यादा पैसा कैश में भी रहता है। तो व्हेनेवर द मार्केट डिप्स आई फील दैट ओके दिस इज अ गुड पॉइंट, आई बाई अ लंप सम ऑफ इक्विटी एंड या उसको ही प्लेज करके ट्रेड करते रहते हैं। कभी कभी कोई स्टॉक में भी कुछ मोमेंटम स्टॉक मिल गया तो उसको भी बाई कर लेते हैं, छोटा क्वांटिटी लाइक 1% ऑफ द पोर्टफोलियो, 0.5% ऑफ द पोर्टफोलियो टाइप्स, एंड उसको भी प्लेज करते हैं एंड ऑफ कोर्स उसी से मार्जिन मिलता है तो उसी से ट्रेड कर लेता है। तो ऐसे हार्ड एंड So फास्ट टूल नहीं है कि कोई सिस्टमैटिकली। yeah, so the thing is, trading is not meant to be making you wealth. Trading से आपका wealth नहीं generate होगा. Wealth is always generated by investing. It could be starting a company or investing in a company, right? So trading is mostly like a cash flow event कि आप कुछ business कर रहे हो जहाँ से रोज का या every month या every week या every year का कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है. That पैसा you are ultimately investing into businesses, could be stocks, could be equities, could be gold, could be anywhere, could be VC funding, angel investing, whatever you want to be, and that basically inherently grows exponentially. Take trading as a cash flow generating machine की जहाँ से आपको salary या should not say salary but एक cash flow generate हो रहा है, and anytime you get an opportunity जहाँ आपको लगता है कि यार मेरे को कुछ चीज सस्ती मिल रही है, then what it should be, you go and buy that. तो could be stocks, could be gold, could be एक्चुअली द थिंग equity. इज के ये 2020 से जो 2023 की रिजीम थी ना, उसमें काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट की है, स्पेसिफिकली ट्रेडिंग ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो अब वही लोग जो हैं दे आर नाउ सीइंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स कि भाई अब जो है वो वाली वैसी रिटर्न्स आ नहीं रही है, मिल नहीं रही है। सो उनको फिर इस फिलॉसफी से देखना चाहिए कि सिर्फ कैश फ्लो मेंटेन कर होता रहे, एंड वेल्थ जनरेट करने के लिए मे बी इन्वेस्ट समवेयर। I do weekly iron condor and adjust based on the market movement, starting with the zero point 0.1 delta and keeping VAR at 12 to 13%. What's your view? Systematic trading, iron condor के लिए. I mean, you can do it. Just need to manage risks. अगर आप 0.1 डेल्टा से कर रहे हो और if it moves to a certain point deltas कि यार let's say एक डेल्टा हो गया 25, दूसरा हो गया probably 5, then you have to manage it. Take some risk off or add some risk on the minimum side, right? So very similar to how you trade like any other position. You could do that.
my take on it is it worthwhile doing it or not? Systematically, you will make some money doing this. It will not be large enough. So you need large amount of capital to be doing this and make substantial amount of money. I personally would prefer doing an iron fly, selling a straddle and then doing like buying OTMs. That would I understand why you are doing 0.1 because you want to have a higher probability of profit. मतलब तुमको रोज का थोड़ा पैसा चाहिए, higher वो चाहिए. I want more money, less risk, so I would probably do iron straddle. I am okay losing every now and then, but I do not have to bring a lot of capital to trade this thing. So yeah, so both are same. It's just component of how much capital you can bring to make how much money. If I have enough capital, I probably might even do iron condor. If I do not want to bring in a lot of capital, I would do iron fly. अच्छा, ये पूछ रहा है कि वो कितनी बार डीडी आएगी. जो द गाय हु आस्क्ड लाइक 40% अगर रिटर्न बनाना है तो कितना डीडी एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो पूछ रहे थे कि कितनी बार आएगी. सो दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ योर ट्रेड्स. अगर तुम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो एंड पर डे रिस्क लेट्स से 2% ले रहे हो तो देन प्रोबेबली 3 बार आ सकता है डीडी. बट अगर आप लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर रहे हो तो प्रोबेबली एक बार ही आएगी. बट वो जो टाइम ड्रॉडाउन है वो ज्यादा खींच सकता है. बट आप शॉर्टर टाइम फ्रेम बेट्स ले रहे हो तो देन प्रोबेबली ड्रॉडाउन मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, बट वो जो टाइम है ड्रॉडाउन का वो छोटा रह सकता है. सो इट डिपेंड्स. I would say market is supreme. Nothing that like it can go way worse than what you have seen or what you think you can. तो ड्रॉडाउन कितनी बार आ सकता है, कितना आ सकता है, ये बाजारी आपको बता सकता है. वी रिमेंबर अप्रैल, like the kind of moves that we saw last year April didn't happen earlier and then suddenly happened 4 times in 1 month, right? Yeah. So like the worse you expect, it will happen worse. That is the motto of trading कि जो आपको लगता है उससे बहुत worse हो सकता है और बहुत frequently हो सकता है. It could be like you hit a 10% drawdown and then you think that oh now यहाँ से reversal आना चाहिए, but it goes even further down and their market like just humbles you like anything. Eric, बाबे पूछ रहे हैं, why do you guys promote option more than future? I think future is better. I want your opinion. इसका कर दो आंसर यार, ये बहुत बारी पूछ रहा है. ये बहुत बार So पूछ रहा है. लाइक thing is future is a price spot based rate जहाँ पे आप In very short form, बड़ी छोटे में बता दो. किसी भी एसेट का रियल स्पॉट ट्रेड कर रहे हो कि आप भाव यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा. जब आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे होते हो तो आप मोस्टली उसकी वॉलेटिलिटी ट्रेड कर रहे हो कि वो मार्केट कितना वॉलेटाइलली मूव करेगा. तो ये दो फर्क है. देयर आर exceptional future traders, there are exceptional option traders. Everybody has their own piece of cake. So yeah, there is no good and bad about it. तो ये पूछ रहा है कि trading 5x notional exposure, selling far away naked weekly options based on price action, making 18 to 20% returns per annum a good thing to do. I would say if you're trading naked options, especially positionally, 5x notional exposure is quite high. आपको कुछ एक्सपोजर कम करो बट पास आओ, प्रीमियम ज्यादा कलेक्ट करो. लाइक यू कम क्लोज टू मनी इंस्टेड ऑफ गोइंग फार आउट ऑफ द मनी, यू कम क्लोजर टू मनी बट साइज कम करो. मतलब मान लो कि अगर आप 1 करोड़ पे लेट्स से आप 2000 क्वांटिटी निफ्टी का 10 रुपए या 20 रुपए या 30 रुपए ऑप्शन बेच रहे हो, उसकी जगह पे आप 1000 क्वांटिटी बेचो बट सेल प्रोबेबली लाइक 80 रुपी ऑप्शंस. तो रिटर्न वाइज सेम रहेगा एंड आपका टेल रिस्क कम हो जाएगा. Again, if I was telling this to a friend, I would say not to do it because the thing is, trading के साथ ना, it's not only the money that you give up, it's also the time. हो सकता है you make 18% per year for 2-3 years and then one big fat year you lose a lot of money just because you're trading higher leverage and slightly OTMs. OTMs में problem एक ज़्यादा ये हो जाती है. We talked about in last video as well कि आपका comfort बहुत high हो जाता है and then when things go wrong, you're still caught in that comfort. So I would suggest not doing it rather than trading 5x at OTM options. Probably do it at like 3x at ATM options. Yearly same reward आएगा, थोड़ा सा पेन ज्यादा होगा but risks बहुत reduce हो जाएगा. Is knowledge of Greeks necessary when trading options? If you have a sizable capital,
if you are trading like a bada capital, sizable capital, I would suggest you to look into it. I'm not saying it's necessary. I would not go there. I would suggest कि बड़ा capital है and you are competing with the smartest minds in the world. I suggest you look into it. Once you have looked into it, like paid time into it, then you decide if it's beneficial or not. On a smaller capital, you could do whatever, I mean, gives you the most bang for the buck. But if you are trying to compete with the largest players in the world at the largest space, where speed, intellectual level, everything matters, I would not absolutely debunk anything. I would work as hard as possible, and then after figuring out, then say, oh, it's worth for me or not. तो देखने में कोई कुछ नहीं है, काम करना पड़ेगा. सारे लोग पूछते रहते हैं कि इज इट इम्पोर्टेंट, मतलब जितने टाइम लगाते हैं पूछने में उतनी देर में यू कैन जस्ट लर्न इट. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. अगर तुम फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, लाइक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सारंग भाई, जनरली क्या होता है कि इट इज पीपल आर जस्ट लुकिंग फॉर समबडी टू जस्ट कंफर्म देयर बायस. उसके पास ऑलरेडी आंसर है. किसी को मतलब किसी के ऑलरेडी लगता है कि भाई ग्रीक्स आर not at all important, so they are just waiting for somebody at a higher position to give them tasalli ki ha bhai Greeks ye important nahi. So मेरे हिसाब से if you just know your delta, the delta of your position कि कितना ऊपर है कितना नहीं, that is enough. Expiries पे तो Greeks इतना काम करता नहीं है. Rather, if you are trading larger time frames and positional trades, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा कितना डेल्टा ओपन है. And I think that can give you a lot of clarity. No, I get this question a lot because I trade based on Greeks a lot, on things a lot. I'll slightly be brute here. It's mostly a caliber problem when people ask this question rather than a question of doing it. I'm like, dude, who is stopping you? Why are you asking me this? Go look into it, try it, see if it works. If it doesn't work for you, don't do it. Like, I giving you an answer would not help you कि अच्छा है या नहीं. अगर मैं बोल दूंगा बहुत अच्छा है, you will have to go work it out. अगर मैं बोल दूंगा बहुत नहीं अच्छा है, हो सकता है मेरे लिए अच्छा नहीं हो, आपके लिए बहुत अच्छा हो. So it's just a component of you go try it. It works out. मैं 2014-15 में मैंने ग्रीक्स देखना शुरू किया था, एंड जैसे ही मुझे पता चला लाइक ऑल द डेल्टास एंड एवरीथिंग, तो एकदम से a whole horizon opened for me, and मुझे काफी क्लैरिटी आने लग गई अपनी पोजीशंस के बारे में. So I mean, yeah, you should look into it, and अगर तुम्हें सूट करे, good enough. तो question है एक I'll take this question. What is the best day and time to enter weekly trades? So in my opinion, I think expiry day पे next week options are doing very good for me, and that's the day when so मेरा एक account है जिसमें मैं ज़्यादा expiry trading करता हूँ, but usually I'm doing more positional trading these days. तो आई थिंक एक्सपायरी डे पे क्या है कि वॉल्स जो है ना वो सॉर्ट ऑफ सेम बिहेव कर रही हैं इस रेजिम में थ्रू आउट ऑल इंडेक्सेस एंड ऑल एक्सपायरीज. तो निफ्टी में जैसे ही आपकी निफ्टी एक्सपायरी चल रही है उस हिसाब से ही आपकी नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस बिहेव कर रही होंगी, और सेम फॉर सेंसेक्स ऑप्शंस जो 2 दिन बाद होती है. सो आई थिंक ऑन एक्सपायरी डे, आई मीन trading on the next expiry is a good time to enter your positional trades. तो गाइस अगर ये अच्छा रहा ना, तो मतलब अगर एंगेजमेंट कंटिन्यूस आता रहेगा तो प्रोबेबली वी कैन डू दिस अ रेगुलर थिंग. तो ट्विटर पे थोड़ा हाइप करते हैं इस चीज को, मतलब जितना लोग आते हैं तो उतना डाइवर्स क्वेश्चंस भी आता है, तो हम लोग उस टॉपिक्स के बारे में थोड़ा एलोबरेटली बात भी कर सकते हैं. तो यू कैन टैग 915 विथ योर क्वेश्चंस एंड ask them to host these sessions or keep these sessions much often, so that we can do. And बस मिलते हैं. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.